Hello everyone, welcome back to another video from the Fan Stands. Today in continuation with our recent series of interview shows, we've got another special guest with us today. He is the chairman of the Manchester United Sports Club Pakistan, Mr. Ismail Daya. Welcome to the show, Ismail, and thank you for taking time out for us. Thanks for having me. Hope everyone is doing well. Yeah, thank you. Could you tell us a bit about yourself and the journey about Manchester United Supporters Club Pakistan? Okay, as you know, my name is Ismail, and I've been supporting United since a very long time. I was actually born and raised in Libya, and I didn't get anything except Serie A there because uh, Gaddafi's son owned a few Serie A clubs, so that was the only league we got to watch over there. तो वहाँ पे यूनाइटेड का लव मेरा वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ ऑब्वियसली क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कोई ऐसी टीम है भी वो थोड़ी देर बाद जाके स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर ऑन टू इन 2012 शिरोज कुरैशी जो कि एनयूपीएस के ओनर है मतलब जिन्होंने ये पेज बनाया था 2007-8 में उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस पेज पे एडमिन आए और तब से फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और 2013 में ये प्लान बना था आहिस्ता आहिस्ता कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उस वक्त आई थिंक 40,000 लाइक्स थे पेज पे तो वहाँ से फिर प्लान आई वाज इन इंग्लैंड एट द टाइम तो वहाँ से फिर प्लान बना के ऑफिस सपोर्टर्स क्लब पे काम करना शुरू करना और उसके बाद से अब तक ये है सही है जबरदस्त जबरदस्त सो थोड़ा सा दिस सेशन इज गोइंग टू बी सेंटर्ड अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़े से हम आपसे सवाल करेंगे रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड सो लेट्स डिग इन by the way let me introduce my panelists over here as well Mohsin and Dayan they've been with us for a while we've been doing this for almost a year and फिर अभी हम Yes. still growing so let's start the session first what do you think is about the restart and the first match versus the old boss Mourinho? How is it going to be? Is United going to win it or what? रीस्टार्ट की जहाँ तक बात है पेंडेमिक यूके को बहुत बुरी तरह हिट किया उसने और मतलब उनके लॉकडाउन भी नहीं थे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इन लाइन नहीं थी तो इसलिए जिन लोगों ने बोला था कि बुंडेसलीगा स्टार्ट हुई है या दूसरी लीग स्टार्ट हो रही है उनके साथ कंपैरिजन मुझे तब भी पॉइंटलेस लगता था इसलिए कि यूके का रिस्पांस और जर्मनी जितने एफिशिएंट हैं वो कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता तो मुझे यही था कि पीपीजी पे स्टार्ट कर दो अगर तो लिवरपूल के टाइटल का मसला है तो उनको पीपीजी पे टाइटल दे के बात खत्म करो उसके बाद फिर आगे देखो क्या चलता है सीजन रिस्टार्ट का मैं सच फैन नहीं था बट नाउ दैट इज स्टार्टिंग बिग मैच अगेंस्ट स्पर्स के साथ हमने खेलना था बिफोर द सीजन वाज पोस्टपोन्ड और तब उनके केन इंजर्ड था Ali injured था Son injured था and it was looking quite an easy fixture but now everyone's back तो मुश्किल होगा and obviously Spurs are also contesting for top 4 so I think it's going to be a difficult battle but if Bruno and Pogba play to their strengths then hopefully we can win 100%. Dele Alli, just to mention, Dele Alli is probably banned from the match, and because of scoffing, post that was scoffing the COVID situation. social media Yes, on social media. So the rest will be 100% playing, and it's going to be a much more tougher game than it was supposed to be before. So talking about Corona, you touched upon it a bit. कि Britain में बहुत ज़्यादा आया. So what do you think is going to be the effect of the coronavirus on the footballing world, especially in the transfer market and the pricing, the fans, everything? अकॉर्डिंग टू रूमर्स तो ये आ रहा था कि काफी ज्यादा क्लब्स इफेक्ट होंगे लेकिन मेरे ख्याल से जो छोटे क्लब्स हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट आएगा जो बड़े क्लब्स हैं आई थिंक दे विल सस्टेन वेल इनफ अब आप देखें कि चेल्सी फॉर एग्जांपल हैव स्पेंट इन एक्सेस ऑफ 100 मिलियन पाउंड्स सो फार दिस सीजन जीएच उन्होंने लिया और फिर पुलिसिच पे भी किया अब सांचो पे भी हैवर्ट्स भी ट्राई कर रहे हैं So, and Chelsea are the club that reported losses of 110 million last season. तो उसके बावजूद भी अगर वो ये ड्यूरिंग कोरोना ये कर सकते हैं तो फिर आई डोंट थिंक दैट बिग क्लब्स विल बी अफेक्टेड लेकिन छोटे क्लब्स पे असर आएगा मतलब आप देखेंगे विला फॉर एग्जांपल स्पेंड 130 मिलियन सीजन 130 मिलियन लास्ट सीजन so I don't think any club of that stature will repeat that this season. Bilkul. And at the start of the season, everybody
Ole ke khilaf the, and everybody was saying that Ole is not the right man for the job. So what do you think that due to the recent form and what United is doing, has Ole addressed all the doubts that you see that everybody had, and do you see him in the long run as the manager for Manchester United? When Ole came, obviously I wasn't in favor of it because I thought he was inexperienced. But जो romanticism था, वो decision उस पे based था कि चलो इस तरह एक दफा हेनरिक लार्सन आया था for 6 month loan, तो वो भी काफी romanticism पे based था. उसके बाद उसको साइन इगालो को आप देख लें, वो भी इसी वजह से. तो ये when Ole came, suddenly उसके स्टेटमेंट्स और शुरू वाले मैचेस और परफॉर्मेंसेस और केमिस्ट्री काफी ज्यादा इंप्रूव एकदम से हुई, तो ऑब्वियसली बिलीफ ग्रो होता रहा. For example, Ole said that no other team should outwork Manchester United, और उसके बाद इस season only 2 teams have outworked Manchester United in terms of distance and effort put in. तो ये सारे साइंस अब आप देखोगे सर एलेक्स जब से गए हैं, तो एज अ फैन मैं यही चाहता था कि मुझे कोई ऐसे साइंस नजर आए इन द सिस्टम, इन द प्लेयर्स कोचिंग, इंडिविजुअल प्लेयर्स इंप्रूवमेंट, अडेप्टेशन टू डिफरेंट सिस्टम्स. ये सारी चीजें मैं देखना चाहता था मॉयस से भी, वैन गाल से भी और मोरिनियो से भी. लेकिन मुझे एज अ पैकेज ये सारा कुछ देखने को नहीं मिला था. इंडिविजुअल बिट्स मुझे नजर आए, लेकिन अगर आप प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट की बात करो, फॉर एग्जांपल फ्रेड वाज अ गॉनर दिस लास्ट सीजन. उसके बाद फिर ओले ने उसका करियर बचाया. शॉ एवरीवन थॉट वाज गॉन, ही इज आल्सो इन द फर्स्ट टीम. तो इस तरह काफी ज्यादा पॉजिटिव साइंस है. हमारा जो अडेप्टेशन है डिफरेंट सिस्टम्स की, सिटी को फॉर एग्जांपल 3-5-2 पे हराया, चेल्सी को 4-4-1-1 पे हराया. इस तरह ये कोचिंग ही दिखाती है ये सारी चीजें कि the future is bright, and obviously with the right additions I think Ole will be successful and be here for the long term. Yeah, but लेकिन वैसे I agree with you on 99% of this stuff, but लेकिन the fans are still like Ole out. जब भी एक loss होता है Ole out की आ जाती है. There's also another point that I'd like to bring in as well, is because since the time that Sir Alex Ferguson has left, and the club has been in transition, and there have been so many heads that have come in between Ole being appointed and Sir Alex Ferguson leaving. Every particular manager brings in his own set of cultural values into the club, and since Alex Ferguson's time, even if you look at Liverpool for that matter as a particular example, these are clubs with some legacy. These are clubs that stand on a certain set of pillars that shouldn't be moved a lot, because then you end up losing their brand identity and their footballing identity as a whole as well. And I felt like after a very long time, Ole actually brought back those set of cultures as well. So for example, a particular personnel isn't bigger than the team. If you look at, so for example, in our last video, one of our last videos, one of our guests actually mentioned, the procurement of Di Maria and Falcao as well. And a lot of such procurements that were only done on the basis of, the name of the player being very big and very trendy, which hasn't been the case in United. So a lot of players that you look at in Sir Alex Ferguson's times weren't proven players. Even for instance, if you look at Ronaldo, Cristiano Ronaldo as well. Cristiano Ronaldo was, yes, a very promising talent, but he wasn't such a big brand name at that particular point. It was more of a system, and bringing in small players into that system, that the system would automatically groom and make those players play as well. So I feel like during Ole's time, a lot of that has come back, and a lot of things have, are showing a lot of promise as well, in that particular perspective as well. फैंस की जहाँ तक आप बात करते हो, तो फैंस यूनाइटेड के फैंस स्पेशली उन्होंने देखी सक्सेस है. जब से टीवी यहाँ पे पाकिस्तान में फुटबॉल मैचेस आना शुरू हुए हैं, उन्होंने देखी सक्सेस है. आप 2003-4 से लेके अब तक की बात करो तो कितने प्रीमियर लीग टाइटल्स और चैंपियंस लीग फाइनल्स भी देखे, तो उन्होंने देखी ही सक्सेस है. जब उससे थोड़ी सी भी डिविएशन आए तो ऑब्वियसली काफी क्रिटिसिज्म वगैरह होता है. अब फॉर एग्जांपल मैं आज देख रहा था कि अभी ये दयान ने बात की कि इंडिविजुअल प्लेयर इंप्रूवमेंट्स की, तो रैशफोर्ड का आप देखें कि हाफ सीजन में 19 गोल्स मारे हैं उसने, और उसके बाद इंजर हो गया, व्हिच इज एन एक्सेप्शनल सीजन सो फार. लेकिन आप देखो कि कल रात को फ्रेंडली हुआ और उसने एक 1-on-1 रेस किया, और फिर मैंने
एक कमेंट देखा कि इस तरह यार लोग तो कह रहे हैं परेरा ने बड़ा अच्छा खेला, खुदा को मानो, यानी कि दे लाइट इयर्स अवे फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। आप बात करो। नहीं ये देखो ना आपके, अब देखो कल का मैं क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ कि एक 60 हाँ मिनट फ्रेंडली यूनाइटेड 2-1 हारा है, दूसरा दूसरा जो हाँ जीता उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर फ्रेंडली को बेसिस बनाना है तो ऑब्वियसली पेरेरा शुड स्टार्ट अगेंस्ट स्पर्स, ही स्कोर 2 गोल्स। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ऐसे So, होगा नहीं ना। Ismail, I have a question from Liverpool's perspective. Do you think Klopp ने एक एग्जांपल सेट की है कि अगर आप मैनेजर को 3-4 साल का टाइम देते हैं तो that can yield results in the longer term? तो आपको क्या लगता है ओली को कितना टाइम दिया जाएगा? बिकॉज उस पर थोड़ा प्रेशर भी चल रहा था इस सीजन के, पोचेटिनो वाज सैक्ड बाय स्पर्स। अभी भी काफी बुकीज कहते हैं कि पोचेटिनो इज द नेक्स्ट यूनाइटेड मैनेजर फेवरेट टू टेक ओवर फ्रॉम ओली। So what is your perspective on that? अगर longevity की बात करें तो I think Spurs were very wrong to sack Pochettino. I mean Spurs under Pochettino were as high as they're ever going to go. इससे ज़्यादा 100%. मोरिनियो भी नहीं इनको लेके जा सकता, तो पोचेटिनो ने जो किया, I don't think any football fan would have predicted that Spurs would reach a Champions League final. उनके लिए बहुत बड़ी बात है, 2 प्रीमियर लीग टाइटल रन उन्होंने किए थे लेस्टर वाले सीजन में भी, तो उनके लिए यही पीक थी। अगर जोसे को ला के अगर वो समझते हैं कि इसको क्रॉस करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला, श्योर ही मे विन द ऑड कप और 2, ये कैराबाओ कप या एफए कप, लेकिन लॉन्गेविटी के सेंस में पोचेटिनो को क्रॉस, पोचेटिनो भी एक अच्छे एग्जांपल है, और क्लब की अगर आपने बात की है तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज क्लब के इनिशियल ईयर्स में भी हैं करंटली एट यूनाइटेड, और स्पर्स में भी थी कि क्लब जब आया तो सबसे पहले उसने जो कल्चर, जिस तरह दयान ने बात की, वो कल्चर चेंज किया। कल्चरल रीबूट इज अ बिग पार्ट ऑफ अ क्लब सक्सेस। अभी उस दिन डेविड मे से हमारे जो इंटरव्यू था उसके अंदर उसने यही कहा था कि हाफ ऑफ द टीम सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ द ड्रेसिंग रूम इज। तो ड्रेसिंग रूम में हैप्पीनेस आए, एक स्पिरिट आए जो कि मोरिनियो के अंदर नहीं थी, तो उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती रहती है। क्लॉप ने भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट दिखाई। अगर आप फर्स्ट ईयर को देखो तो आई थिंक ही मिस्ड आउट ऑन टॉप 4 या बेरली मेड इट, मुझे अब सही इतना याद नहीं, लेकिन उसके अंदर गोल्स कंसीडर्ड आई थिंक 60-65 अ सीजन, व्हिच इज वेरी वेरी हाई। तो उसने देखा कि डिफेंस पे काम करना चाहिए, फिर उसने देखा मिडफील्ड पे काम करना चाहिए, तो फिर अटैक का भी उसको हिट आया कि कुटिन्यो लेफ्ट फॉर बार्सिलोना, हु वाज अ रियली गुड प्लेयर फॉर लिवरपूल एट द टाइम, लेकिन ये लॉस भी उसने फिर बर्दाश्त किया। तो इस तरह इनिशियल ईयर्स में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती है। अभी आप देखो कि लास्ट सीजन यूनाइटेड की जो डिस्टेंस रन है फॉर एवरी मैच, इट वाज वेरी लो, डिफेंसिव रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं था। इस सीजन सेकंड बेस्ट क्लीन शीट्स इन ऑल ऑफ यूरोप। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, और टाइम देना बिल्कुल ज़रूरी है। क्लॉप को मिला तो बेशक लिवरपूल है, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट ही कल्चर वापस आ रहा है प्रीमियर लीग में टाइम देने के लिए, क्योंकि यू कैन जस्ट सैक एवरीवन बेस्ड ऑन 10 to 12 गेम्स। पोचेटिनो 5 साल स्पर्स के साथ बहुत ज़्यादा ठीक रहा था, आप उसको पैसे देते तो वो और अच्छा होता। आई थिंक व्हेन ही रीच्ड द चैंपियंस लीग फाइनल इट वाज अ £0 नेट स्पेंड, £0 नेट स्पेंड के साथ चैंपियंस लीग फाइनल स्पर्स के लिए जाना एक मिरेकल से भी बड़ी बात थी। So I hope Ole is given time, and I hope the owners also look at other clubs. 100%, 100%, बिल्कुल and more importantly, I also feel that since COVID, this is a time when we're impacted by a global pandemic, and there's already been a lot of financial implications because of that. I don't see any club per se at the moment, in the short run at least, sacking any manager at the moment, because sacking a manager means a U-turn in terms of their strategy in the long term as well. So I don't see that happening at the moment. बिल्कुल खैर talking about COVID, and you touched upon the midfield as well. So right now we've got 2 stars for United in the midfield, which is Pogba and Bruno Fernandes. Pogba is back from injury and is fit. So what do you think are those rumors about him leaving United at a very high price, being affected by COVID, and what do you think is how is he going to gel with the other midfielders in United? Good players can always play against with each other. मतलब आप देखोगे, अभी आप ब्रूनो पोग्बा की बात कर रहे हो,
तो 2008 में जब टेवेस, रूनी और रोनाल्डो का ट्रियो बना हुआ था, उसके बाद जब बर्बाटोव लेके आए थे तो फिर तभी सानू ने ये कहा था कि बर्बाटोव कहाँ पे फिट इन होगा। लेकिन गुड प्लेयर्स हमेशा फिट हो जाते हैं। ब्रूनो एंड पॉग्बा आर एक्सेप्शनल प्लेयर्स। तो कल की जो हाइलाइट्स देखी उसके अंदर भी एक अच्छा लिंकअप था, अच्छी पासिंग, और अपेरेंटली क्योंकि इन्होंने सारी गेम्स की तो हाइलाइट्स दिखाई नहीं है, सो the journalists have said and they've all said that Bruno and Pogba have linked up very well with Pogba sitting deep. तो ये एक चीज है। और जहाँ तक उसकी सेलिंग की बात है, I don't think he should be sold and hopefully he signs a new contract, क्योंकि Pogba is a big name player obviously, और मीडिया का बहुत ज्यादा रोल होता है कि एक प्लेयर की परसेप्शन कैसी आनी चाहिए फैन बेस के सामने। तो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है पॉग्बा का। अगर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म है भी तो आई थिंक काफी ज्यादा इशू इसका ये भी है कि नेगेटिव रिपोर्टिंग काफी ज्यादा हुई है पॉग्बा के लिए। Okay, so अगर if you guys are saying कि Pogba is going to play, so who is going to then sit out? Because Pogba and Bruno are shoo-ins, so it's either going to be between McTominay and Fred. ये चीज मैं इस सीजन 3 दफा सोच चुका हूँ कि पॉग्बा जब आ रहा था और फिर मैकटोमिने भी बहुत अच्छा खेल रहा था, मैटिच भी बहुत अच्छा खेल रहा था, फिर उसके बाद मैकटोमिने 2 महीने के लिए इंजर हो गया। फ्रेड एंड मैटिच प्लेड इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी एवरी सिंगल गेम। तो ये ऑब्वियसली ये लग्जरी हमें अभी तक मिली नहीं है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप ये चलता रहे और इंजर कोई ना हो। But if no one is injured, then Pogba, Bruno, and Fred would be my pick. Matic obviously is also exceptional, but it's good for a manager to have this headache instead of playing Andreas Pereira in midfield. So everybody's against Andreas Pereira. One question when it comes to Pogba is if you've seen Pogba play, Pogba has been that, as in, for a lack of a better word, I'm using a very crude word, but Pogba's always been sort of a glory hunter as well, and he's always wanted to play up front and affect games up front as well in the final third. And when you're talking about Pogba sitting deep, it's sort of like Pogba has to focus more on probably blocking channels of passes coming from the opposition, staying back, and giving the defensive line a cover as well as a midfielder as well, and controlling the game from there. But whenever you've seen Pogba who likes going up front, likes playing in an advanced position, how do you see that probably gelling in? Do you see like because a question arises in my head, if Pogba continues having that, and technically on ground Pogba is a very good professional, but when it comes to affecting the final third, he does have a little difficulty in controlling the passion that he has for that. So my point is, how do you see that? Do you see that as something of a conflict that Ole may have to step in, butt in for and control? Because you see another player who is Bruno, and Bruno loves to probably play his own game, and in that particular position. But if you see another player coming in, could that sprout another conflict of sorts or a problem of sorts for United? I don't think so, because अगर आप देखोगे ब्रूनो एक कह लो आप मॉडर्न कैम पोजीशन का प्लेयर है। मॉडर्न कैम ऐसे बिकॉज आजकल जितने भी कैम्प्स मशहूर हो रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल लो सेल्सो की बात करो या आप किसी और भी कैम्प जो फेमस आजकल चल रहे हैं उनकी बात करो, तो वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहते। जिस तरह फॉर एग्जांपल ओजिल एट रियल मैड्रिड, वो जिस तरह का कैम्प था, या वो एक पोजीशन पे था कैम्प, वो ट्रैक बैक नहीं करता था। Bruno up and down all the time. So I think Bruno and Pogba will interchange. Lekin Pogba will like to play at DM with Fred or with Matic, क्योंकि Fred और Matic दोनों उसको वो defensive protection दे सकते हैं if he wants to be a box-to-box midfielder. Or when he won the World Cup with France, obviously he was a DM as well. तभी वो कैम नहीं खेला था। So a lot of his good performances have come at DM, and I think he will be able to sacrifice for the team. And I also expect Fred and Matic to work more than they've done previously to accommodate Pogba going forward. Okay. All right. Ismail, what do you think? Pogba का सबसे बड़ा मसला है कि रेओला है, and रेओला की जो relation है with United, that is deteriorating. So how will the club handle this situation in the near future?
मीनो रायोला को सब गालियां देते हैं, मैं खुद भी एज यूनाइटेड फैन देता हूँ क्योंकि माय कंसर्न इज यूनाइटेड। लेकिन अगर आप देखो तो इन माय ओपिनियन ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एजेंट इफ यू आर अ प्लेयर, क्योंकि जितने यंगस्टर्स को, जितने अप एंड कमिंग जो यंगस्टर्स आगे जाके वर्ल्ड क्लास हुए हैं या होंगे, उन सारों को इसने ऊपर तक पहुंचाया। अगर आप डोनारुमा देखो, विराटी देखो, आप हालैंड देखो, आप पॉग्बा को देखोगे, पॉग्बा वेंट टू जुवे under Mino, and he also secured a world record bid to come back to United. तो इस अगर आप वो भी देखो, मिकहितारियन का वो एजेंट था, मिकहितारियन wasn't really good for United, लेकिन he was 170k a week at United, and in the swap deal with Arsenal, Mino somehow negotiated with Arsenal to give him 190k. I mean, he went to another club and he also got 20k extra. So अगर आप उसकी वर्किंग की बात करो तो उससे बेहतर एजेंट मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी नहीं है फॉर अ प्लेयर। लेकिन रिगार्डिंग इट्स रिलेशनशिप विद यूनाइटेड, रिसेंटली मैंने कुछ साइंस देखे हैं। आई मीन आई हैव नेवर सीन मीनो अपोलोजाइज टू एनीवन, लेकिन जो चेल्सी की गेम थी जो हमने हराया था स्टैमफोर्ड ब्रिज में रिसेंटली, उस गेम के बिल्कुल ईव पे उसने एक और फजूल ट्वीट की थी जिसका अगले दिन ओले ने जवाब दिया था। उसके बाद मीनो ने अपनी स्टेटमेंट से बैक ट्रैक किया था, उसके बाद से उसके मुंह से कुछ निकला नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ओले उसके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है जिसपे वो अपनी जगह पे रहे और जिसपे वो क्लब के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, और उसके बाद से अब तक नहीं किया। सो होपफुली दैट्स द केस राइट नाउ, but in the future I don't want United to sign any more Mino Raiola players, even if it's Haaland. Yeah, 100%. ठीक है, so moving to Europe. So United is currently in the 5th spot and gunning for the 4th spot, and also City has a ban, so technically we're going to Europe. So what do you think about that? And also cover about the Europa League, whether it's going to start and what are the chances of United winning it? सिटी की बैन की जहाँ तक बात है, सिटी ने बोला कि irrefutable evidence हमारे पास है, और बिल्कुल। वो irrefutable evidence is no doubt काफी ज्यादा आर्बिट्रेशन में चला गया है और वो आर्बिट्रेशन का रिजल्ट आएगा जुलाई में। हाँ, तो वो आपको पता है कि उधर क्या होना है, so I'm not expecting Petrodollar. City to get a ban. बिल्कुल। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये इस तरह यूएफए में कोई करे जाता है इस तरह का डिसीजन लेने का भी, तो I see United going into top 4 anyway. मतलब 5th आके Champions League में, I think United will edge out Chelsea and probably Leicester as well, considering we play them. And if we beat them, then the gap is just 3 points between us and Leicester with 6 or 7 games to go. So I think United will finish 3rd, ideally, लेकिन 4th आ जाएंगे. Okay. And Europa, if it restarts, so what are the chances of United winning Europa? Europa restarts depends on the schedule that UEFA are going to put to United, क्योंकि 3-4 दिन पहले तक ये रूमर्स थे कि गडांस्क में होगा यूरोपा लीग फाइनल, लेकिन उसके बाद से ये चेंज हुआ कि जर्मनी की किसी सिटी में, आई फॉरगॉट द सिटीज नेम, वहाँ पे एक मिनी यूरोपा लीग टूर्नामेंट, मतलब जितने फिक्सर्स पेंडिंग है वो वहाँ पे होंगे, क्वार्टर फाइनल्स, हाँ एक लेग करके। तो ये रूमर्स आए थे, तो it depends on the schedule that UEFA puts. If it's too challenging, then I think we'll miss out. लेकिन अगर हमारे लिए convenient हुआ, and if hopefully top 4 is sorted before we reach the latter stages of the Europa League, then hopefully we can win and add a trophy as well. Definitely, let's hope for the best and go United. Okay, moving on. Leicester का fan United कर रहा है. Moving on to the next season, what do you think is going to happen in the next season and the possible contenders? Possible contenders जो हैं वही, अगर आप यूनाइटेड का, मैं नेक्स्ट सीजन तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि वो प्रीमियर लीग टाइटल जीतेंगे, लेकिन विद द राइट एडिशंस विल बी राइट देयर, क्योंकि ग्रेजुअल प्रोग्रेशन मैं देख रहा हूँ। सो नेक्स्ट सीजन माय रियलिस्टिक objective would be to not fight for the top 4 and not be a title challenger either, but be comfortably in the top 4. And who do you think, from City and Liverpool and Chelsea, who do you think is going to win? City, I don't think will win now, क्योंकि अगर उन पे बैन लगता है तो most of their big players have said that they'll move away. अगर लिवरपूल की आप बात करें तो apparently their owners have told Klopp that there is no money available and you have to work with what you have.
So sometimes that can galvanize the whole squad, like it did with Spurs under Pochettino when they reached Champions League final. And sometimes they can move away from the level of success they had previously. लेकिन next season यही लग रहा है कि I think they'll win again, or somehow Chelsea will challenge them because they've had a good window so far. Most But, you know, sorry, I just wanted to ask Ismail, you mentioned a good thing. Liverpool financially players in खरीद सकता. Do you think United will be successful in securing their targets? Sancho की काफी टाइम से बात चल रही है. What is your take on that? अभी तक जो हमने प्लेयर्स टारगेट किए हैं, अगर आप ग्रिलिश की बात करो या सैंचो की बात करो, तो बोथ ऑफ देम वांट टू कम. तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका क्या ओपिनियन है यूनाइटेड आने के लिए. पैसे बहुत ज्यादा है ना. हाँ, पैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप देखो कि चेल्सी कैन स्पेंड 100 million plus after the season they've had, then हाँ, यूनाइटेड ने इस कोविड के पीरियड में जितनी पॉजिटिव पीआर जनरेट की है, तो फाइनेंशियली भी उनको कोई ज्यादा ऐसा इशू नहीं होना सैंचो खरीदने का. And I hope for one or two other signings as well. I think Van de Beek has also been very heavily linked with United, and just recently I was reading that Jimenez has been is being linked as well. But let's see, Grealish, I don't know if after that incident that's happened, and considering the kind of disciplinarian Ole is trying to be. One very interesting question here. Nobody was expecting Ole to do what he's done here at the moment. But Ole came in, and a very I'd see it as a very wise decision. But the kind of assistant manager that he's brought into the club with him is somebody that also served his time at United with Sir Alex Ferguson as well. How big of an influence do you think that Felon has in terms of Ole's success or failure till now? And till the particular, because even if you look at other managers, for example, I'll give you a very big example, which is Ole, Jose Mourinho. When he lost Faria, his assistant manager, you've seen him going down the curve, and right after that, and so how do you see Felon's influence in whatever Ole has been able to achieve or not achieve at United? And how do you see that decision? मॉरिस की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो एक सक्सेसफुल कोचिंग स्टाफ है, जो एक सक्सेसफुल कल्चर एक होना और बात होता है, इम्प्लीमेंट करना और बात होती है. तो मॉरिस की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने आते साथ रेनी बिलिंगस्टीन को निकाला, माइक फेलन का आपने नाम लिया, उनको निकाला. तो इस तरह जब होलसेल चेंजेस करोगे which go against the culture and history of United, then obviously you're going to suffer. So it was a good decision from Ole to bring back Mick Phelan. और उसका influence obviously ज़्यादा है. और Michael Carrick as well has played under Sir Alex and played 400 plus games for United as well. Kieran McKenna is a highly respectable coach. मैं उसको उसके Spurs days से follow कर रहा हूँ, जब हमने उसको sign किया था for our reserve team. तो coaching staff काफी अच्छा generate हुआ है, और hopefully मतलब rumors थे कि Mick Phelan वापस चला जाएगा क्योंकि he's the sporting director in Australia for a club Maritime, I think the club's name. लेकिन ये इन्फ्लुएंस जो है अच्छी बात है कि इस तरह वापस आए, क्योंकि as you said he coached with Sir Alex. तो वो एक कल्चर, वो एक सिस्टम वापस लाना, डिसिप्लिन की आपने बात की है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका बड़ा इफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप पहले देखो अंडर जोसे, प्लेयर्स जब दूसरे स्टेडियम्स में जाते थे मैच खेलने, किसी ने शॉर्ट्स पहनी हुई है स्टेडियम के अंदर एंटर होते हुए, किसी ने कुछ पहना हुआ है, किसी ने कुछ पहना हुआ है. आप सारे क्लब सूट्स में होते हैं और बड़े रिस्पेक्टफुल वे में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज मैच. छोटी छोटी चीजें होती है, हमें कुछ नहीं लगता है इससे, लेकिन एक कल्चर इंप्लीमेंट करने के लिए, डिसिप्लिन के लिए बड़ा जरूरी होता है. एंड मिक फेलन इज वेरी स्ट्रांग ऑन दीस थिंग्स ऑब्वियसली. तो एक अच्छा डिसीजन था उसको वापस लाने का. I think that transcended from Sir Alex Ferguson only, because I remember at the time of Sir Alex Ferguson was very strict on the way his players looked at, because even if you look at examples like Roy Keane or Cantona, all of these, they were brilliant players, but the only reason for them to be let off and let go of were primarily because of their behavioral issues as well. So I feel like that comes from there as well.
एक थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात, लेकिन अगर आप सर एलेक्स के डिसिप्लिन की बात करें तो जितने इंटरव्यूज मैंने रिसेंटली अभी किए हैं एक्स प्लेयर्स के साथ, तो उनमें मुझे एक चीज देखने की मिली, मतलब बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, इससे ज्यादा पीक आपकी लाइफ में नहीं आ सकती कि आप इतने बड़े क्लब के लिए खेल चुके हो। तो 100%. आई वाज एक्सपेक्टिंग एवरी सिंगल वन ऑफ देम टू हैव ईगो। आई मीन मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे बड़े इज्जत से बात करनी पड़ेगी, मुझे सर पे चढ़ाना पड़ेगा, मैं ये सब सारा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उन सब ने सर एलेक्स की बिहेवियर जो चेंजेस हैं उसकी आपने बात की, उन सब ने ऐसी बात की जैसे मेरे दोस्त हैं। मतलब उनमें जरा ईगो नहीं थी, इतने डाउन टू अर्थ से सारे के सारे, जो मैंने कहा उन सारों ने वही मेरी रिक्वेस्ट पूरी की, और इतना ज्यादा हेल्पफुल। ये चीज अब मैंने नोटिस की है क्योंकि मैंने इनसे बात की है, और इनमें जीरो ईगो। अब ये सारा कुछ आप बात कर रहे हो मिडफील्ड की भी, तो ये सारा कुछ सर एलेक्स की वजह से ये ट्रांसेंड हुआ है कि इन लोगों के मतलब ये सिर्फ अच्छे प्लेयर्स नहीं, ये काफी अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, और इन सारों की जो क्रेडिट है वो ऑब्वियसली सर एलेक्स को बहुत ज्यादा जाता है। I'd like to add one thing. Can you imagine 2015 में मैं जब यूके में था तो I went to Old Trafford. वहाँ जब आप विजिट पे जाते हैं तो आस्क आप कौन से क्लब के फैन है, तो बड़ा डर के मैंने लिवरपूल पूछा, लेकिन they were very happy कि आप आए हैं वहाँ पे. Now that's long story कि मैं ओल्ड ट्रैफर्ड क्यों गया, but you know it felt good and मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिली थी despite being a Liverpool fan. So I think United has worked very well on their club culture, and you know that is why they're very successful commercially as well. बिल्कुल बिल्कुल. सो कल्चर की बात करते हैं एंड आवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे. सो पाकिस्तान में ये फुटबॉल कल्चर एंड मतलब हाउ डू वी डेवलप दिस एंड किस तरह हम ये सिनेरियो इंप्रूव करें एंड एवरीथिंग पाकिस्तान. And more importantly, you know, because you run a base as well and we run a base as well, how do you see us, people like us who are running individual bases as well, collaborating with each other? And probably, you know, how do you see us helping you? How do you see yourself helping us, or, you know, and us helping the whole ecosystem at large in Pakistan to probably even promote this particular sport? Because आपने देखा होगा हमारी youth जो है, जो फुटबॉल खेलती भी है, उनके पास आगे जाके they don't really have an objective to hit. एंड ज्यादातर जो घरों पे जो माओ का वालदैन का सवाल होता है वो यही होता है कि फुटबॉल खेल के बेटा क्या ही कर लोगे तुम, ठीक है? तो हाउ कैन वी हेल्प, एंड यू नो कंसीडरिंग दैट वी आल्सो हैव माइक्रो क्लब्स लाइक यू नो कराची यूनाइटेड, and obviously and we're all professionals in our own particular, you know, perspective as well. So 100% as in if minds like ours come together, how do you see us, you know, probably even, you know, promoting that culture and developing it? इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि अगर हम अथॉरिटीज की तरफ देखें हेल्प के लिए, तो हमें कभी भी नहीं मिलने वाली आगे फॉर लॉन्ग टाइम इस सेंस में कि अथॉरिटी किसी भी किस्म की हेल्प करे। तो अगर आप एनबीएफसी पाकिस्तान को देखो तो मतलब हमारी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसका जो क्रेडिट है वो एक्सपोज होना चाहिए था, मतलब मीडिया चैनल्स पे आना चाहिए था। और मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि जो एमबीएफसी पाकिस्तान ने अब तक किए, आई मीन वी आर इंटरव्यूइंग एमबीएफसी लेजेंड्स आजकल, जो आज तक किसी पाकिस्तानी चैनल तक नहीं किए। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं चैनल्स, टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कोई काम कभी भी नहीं किया। लेकिन उसका फिर ये है कि जो कुछ अच्छा होता है वो यूके की न्यूज़पेपर्स में हमारी बातें जाती हैं। मतलब बीबीसी वर्ल्ड ने मेरा इंटरव्यू लिया था, टेलीग्राफ ने हमारे बारे में लिखा, गार्डियन ने हमारे बारे में लिखा, इस तरह काफ़ी न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने हमारे बारे में लिखा। लेकिन यूके में पाकिस्तानी सपोर्टर क्लब होते हुए सबसे पहला जो चीज़ जानी चाहिए थी वो पाकिस्तानी मीडिया पे जानी चाहिए थी, यूके की मीडिया पे बाद में चली जाती। वो तो चलो अच्छी बात है कि यूके के जब मीडिया पे जाएगी तो फिर पाकिस्तान का अच्छा पॉजिटिव इमेज वो जा रहा है उनके पास, लेकिन पाकिस्तान को खुद तो एक्सप्लॉइट करना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने बिल्कुल किसी भी किस्म की हेल्प नहीं की, और ये आप जैसे लोगों की या हमारी या इस तरह हमारी जो जॉइंट एफर्ट होती है, इस तरह फुटबॉल का हम स्कोप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने इंटरव्यूज की बात करूं तो मैंने किसी को आज तक पैसे नहीं दिए। आप लोग भी इंटरव्यूज करते हो, आपने किसी को कभी पैसे नहीं दिए, तो जरूरत नहीं है ना। मतलब आई मीन वी आर प्रमोटिंग फुटबॉल इन दिस कंट्री, तो ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अगर आप देखो कि ये जो वर्ल्ड सॉकर स्टार्स शुरू हुआ था, कितने कितने बड़े प्लेयर्स को आप इधर ला के बैट पकड़ा रहे हो, आप उनको क्रिकेट की चीजें दिखा रहे हो, आप उनको 5 a साइड हॉकी की फील्ड्स पे फुटबॉल खिला रहे हो। मतलब ये क्या है? मैं इधर गया था, कैंट में गया था जब ये वर्ल्ड सॉकर स्टार्स का यहाँ पे लाहौर में हुआ था,
और यहाँ पे मतलब 5-a-side ही इन्होंने फुटबॉल खिलाई थी, ग्रास क्वालिटी बहुत फजूल, और शाम हो गई थी थोड़ी और इनके पास लाइट्स नहीं थी ऑन करने के लिए, तो वियरा, गिग्स, पेरेस वगैरह जो है वो अंधेरे में खेल के चले गए। मतलब आप क्या प्रमोट कर रहे हो? आपने पैसा लगा लिया, आप फुटबॉलर्स लेके आ रहे हो, लेकिन आपने पाकिस्तान में फुटबॉल प्रमोट किया? बिल्कुल भी नहीं किया। आपने कोई और जैसे बंदे को मौला जट का पोस्टर बना के आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? बिल्कुल तो सही बात है। ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे होनी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो है, सॉरी आंसर मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन ये नहीं सेकेंडली जो ईगो का इशू है वो यहाँ पे मैंने बड़ा ज्यादा देखा है डिफरेंट सपोर्टर्स क्लब्स में, डिफरेंट आप कह लो ग्रुप्स में। ईगो इस चीज की कि मैंने ये पहले करना है, मतलब किसी और ने किया तो मैंने किसी को शेयर भी नहीं करना, ये मैं करूंगा तो मैं शेयर करूंगा। इस तरह की ईगो जो है ये मेरी समझ से बाहर है कि क्यों होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मेरे पास आई 3 साल पहले। उन्होंने मुझे बोला कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी सपोर्टर्स क्लब्स हैं पाकिस्तान में आपके सब के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप उनसे बात करें कि हमने एक फुटबॉल का टूर्नामेंट करना है, हम उनको लाहौर लेके आएंगे, पेड उनको अकोमोडेशन देंगे, पेड ट्रैवल देंगे, पैसे देंगे, स्पॉन्सर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम एक बहुत हाई लेवल टूर्नामेंट करवाना चाह रहे हैं। मैंने फिर ऑब्वियसली रीच आउट किया डिफरेंट सपोर्टर्स क्लब्स को, और उनका आंसर ये आया कि नहीं वो हमारे पास डायरेक्टली आएंगे तो हम करेंगे, हमने आपके थ्रू नहीं आना, क्योंकि फिर नाम यही होगा कि यूनाइटेड ने किया। मैंने कहा मैं अपना नाम लेना ही नहीं चाह रहा, मैं एज इंडिविजुअल, आप भूल जाओ कि मैं किस क्लब को सपोर्ट करता हूँ, मैं पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए काम करना चाह रहा हूँ, तो आप आ जाओ। नहीं वो आएंगे तो फिर हम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो प्लान चला गया। तो इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स हमने भी स्टार्ट करना चाहे बड़े, लेकिन हमें आगे से यही ब्रिक वॉल आप कह लो मिली कि नहीं ये हमने करना है, आपने नहीं करना। तो इस तरह के जब ईगो वाले इश्यूज आते हैं तो फिर उसके अंदर पाकिस्तान फुटबॉल प्रमोट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये जब जाएंगे, मेरी तो अब इसलिए भी आंखें और खुली कि मैंने जिन जिन लेजेंड से बात की है, अगर उनमें ईगो नहीं है तो मेरे में किस बात की हो? बिल्कुल मैं कौन ऐसा हूं ही उनके है, सामने? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल वो इनफैक्ट तो एक अगर कभी जिंदगी में आपको लगे कि हम लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज डू रीच आउट टू अस। इनफैक्ट हम लोग का कोई ईगो नहीं है, we're all I'm more on the strategy and partnership field. Hassan is an IT person and technology geek. हमारे मोहसिन हैं वो HR के एक्सपर्ट हैं, so as in if you ever need help from the fan stands as well, we're always up right there for you to help you, and you don't have to give us any credit for that. We run this platform as well. We don't expect anybody to pay us. Why? Because we do this for the love of football, and we would still do this even if nobody pays us, because this is something that we constantly talk about with each other as well. And I guess football is more of a life part of our life. So yeah. बिल्कुल एंड ईगो वाली बात तो सही है, पाकिस्तान में थोड़ा सा ईगो का इशू है, बट हैविंग सेड दैट अभी वेयर कांट गो ऑन on this, we're short for time, this show is about to end, so thank you again for coming on the show and No problem. sharing your insight with us and being so humble and everything, and everyone do remember to like and subscribe our videos and share our channel. Mohsin, do you want to say 100%. anything? Yeah, well, Ismail, thank you so much for coming and taking out your time from a busy schedule and on a very short notice. So I hope this is not the first and the last time. Inshallah, we'll collaborate you for weeks and months to come. Hopefully. All right. Thank you so much, Ismail. Thank you, everyone. Thank you. Hafiz. Hafiz. Yes.